بلیٹن کے آغاز میں کچھ موسم کی بات کر لیتے ہیں۔ نئے سال کے آغاز پر ملک میں بارشوں اور برف باری کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 1 جنوری سے بارش اور برف باری کا نیا سلسلہ شروع ہوگا۔ اسی حوالے سے بتا رہی ہیں صبا وزیر۔ جی صبا۔ جی بالکل، بات کر رہے ہیں موسم کی تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سردیاں جو ہیں وہ صحیح طرح سے شروع ہو گئی ہیں۔ میں محکمہ موسمیات میں موجود ہوں، میرے ساتھ ڈائریکٹر میٹ آفس موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ برف باری کب پڑے گی اور موسم جو ہے وہ کتنا تبدیل ہونے کے امکانات ہیں۔ خالد صاحب کیا کہیں گے؟ نیا سال بھی آنے والا ہے، برف باری کی امید بھی ہے، تو محکمہ موسمیات کیا کہتی ہے کہ کب تک برف باری کا امکان ہے؟ ابھی دیکھیں، ابھی جو سردی کی لہر ہے وہ ابھی چلے گی 2-1 دن تک، اور جیسے ٹیمپریچرز جو ہیں وہ کافی حد تک ڈراپ ہو چکے ہیں اور اگلے 2 دنوں میں یہ اور ڈراپ ہونے کے چانسز ہیں۔ اس کے بعد یہ سلائٹلی تھوڑے سے جو ہے وہ اس سے امپروو کریں گے، بہتر ہوگا۔ جہاں تک بارش کی بات ہے تو ایک ویدر کا سسٹم جو ہے وہ ہمارے کوئٹہ سے انشاءاللہ 1 کو داخل ہوگا، اور وہ آپ کے بالائی پنجاب اور KPGB اور کشمیر کے ان ڈویژنز میں جو راستے میں ہے وہاں پہ رین دے گا، اور جو پہاڑی سلسلے ہیں جس میں مری ہے، نتھیا گلی ہے، سوات ہے، کالام ہے، مالم جبہ ہے، ان میں برف باری کا بھی امکان ہے۔ جی بالکل، آپ نے سنا، ہمیں محکمہ موسمیات نے ایک خوشخبری سنا دی ہے کہ نئے سال کی آمد پر 1 جنوری پر بارش کا امکان ہے، اور پورے ملک میں بارشیں تو شروع ہو جائیں گی، لیکن مری گھومنے کے لیے آنے والے جو لوگ ہیں، سیاح ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ جنوری کے شروعات میں برف صبا وزیر، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ FPCCI کے انتخابات میں یونائٹڈ بزنس گروپ نے میدان مار لیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے ہمارے نمائندے علی رضا سے، جو کہ اس وقت سینئر نائب صدر اختیار بیگ کے ساتھ موجود ہیں۔ جی علی، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، فیڈریشن ہاؤس میں یونائٹڈ بزنس گروپ نے جیت ایک بار پھر اپنے نام کر لی ہے۔ اب ہم موجود ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ اختیار بیگ صاحب کے ساتھ۔ ہم پوچھنا چاہیں گے سر کہ بزنس کمیونٹی کو موجودہ حکومت کے سامنے جو ہے مختلف ٹیکسز کا جو اضافہ ہوا ہے اس میں پریشانی کا سامنا ہے، تو کہیں گیس اور فیول کی عدم فراہمی کے باعث جو ہے مختلف صنعت کار کروڑوں روپے کا اپنا نقصان کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ اب آپ نئی پینل پہ آئے ہیں، انتظامیہ ہے، کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے آپ لوگوں کی جانب سے؟ پہلے تو 2018 کا سال بزنس کمیونٹی کے لیے بڑا غیر یقینی رہا، اور رولر کوسٹر معیشت رہی۔ ڈالر جو ہے 145 پہ 140 کے اوپر پہنچ گیا، اور مارک اپ ریٹ جو ہے وہ 7-8% جو ہوتے تھے بینک کے، لینڈنگ ریٹ 14% ہو گئے، اور پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ۔ پھر ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ گیس کی قیمتیں دوبارہ بڑھائی جا رہی ہیں۔ آج بھی آپ کو پتا ہوگا 700 پوائنٹ اسٹاک ایکسچینج گرا ہے، جس سے کریش ہو چکی ہے اسٹاک ایکسچینج، اور چھوٹے سرمایہ کار تباہ برباد ہو گئے۔ تو یہ تمام چیزوں کو اگر آپ ایک ایمبٹ میں دیکھیں تو غیر یقینی صورتحال ہے۔ وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب میں صنعت کاری کا عمل ریوائیو کرنا چاہتا ہوں، بہت اچھی بات ہے، ہم چاہتے بھی ہیں صنعت کاری کا عمل ہو، لیکن انڈسٹریل گیس کنیکشن پہ پابندی ہے، انڈسٹریل واٹر کنیکشن پہ پابندی ہے، تو آپ صنعتیں کیسے لگائیں گے؟ سب وہ چیزیں ہیں جو کنٹروڈکٹری ہیں، ایف این بٹ ہیں، سوالیہ نشان ہیں۔ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کو سوالیہ نشان سے نکالیں گے۔ ہم ان سے پوچھیں گے کیا IMF کی طرف جا رہے ہیں تو بتائیں، کیا مارک اپ، کیا ایکسچینج ریٹ ان سے آپ نے ایگری کیا ہے؟ 145 کا کیا، 150 کا کیا، 140 کا کیا، ہم ایک پوزیشن لے سکیں۔ جی بالکل، یہی کہنا ہے کہ مشکلات کا یقینی طور پہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مگر بات چیت کا عمل جو ہے وہ جاری رکھا جائے گا، اور جلد امید کا اظہار کیا ہے کہ جلد اس کے اوپر کوئی اچھی حکمت عملی بنا کر بزنس کمیونٹی کے مسائل کا حل نکالا جائے۔ علی بہت شکریہ ان تفصیلات کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں، کچھ عوامی مشکلات کی بات کر لیں گے، اور خبر یہ ہے کہ ملک میں ایک بار پھر بجلی لوڈ شیڈنگ کا جن سر اٹھانے لگا ہے۔ بجلی کی پیداوار 21,000 میگا واٹ سے کم ہو کر 7,500 میگا واٹ رہ گئی ہے۔ ملک میں لوڈ شیڈنگ 6 گھنٹے تک جا پہنچی ہے، جبکہ تقسیم کار کمپنیوں کو لوڈ مینجمنٹ کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ تفصیلات کے لیے آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں۔ سرد موسم میں بھی بجلی کی کمی، لوڈ شیڈنگ کا جن بوتل سے پھر باہر نکل۔ بجلی کی پیداوار 21,000 میگا واٹ سے کم ہو کر 7,500 میگا واٹ تک رہ گئی۔ ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ 6 سے 7 گھنٹے تک پہنچ گئی۔ تقسیم کار کمپنیوں کو لوڈ مینجمنٹ کی ہدایت کر دی گئی۔ حکام کے مطابق پن بجلی کی پیداوار بند ہونے، گیس کی کمی اور فرنس آئل پر پلانٹ نہ چلنے کے باعث بجلی کی کمی کا سامنا ہے، جبکہ بریک ڈاؤن سے بچنے کے لیے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی ہدایت کی گئی ہے۔ لیسکو نے 3 کیٹیگریز میں لوڈ شیڈنگ کے شیڈول
का ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक लाहौर में 3 से 7 घंटे तक लोड शेडिंग की जाएगी। तर्जमान के मुताबिक लेस्को के बिजली कोटा में कमी कर दी गई। लेस्को को 2300 मेगावाट की बजाय बिजली की फराहमी 1900 मेगावाट पर आ गई और इसको 400 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। और कुछ बात कर लेते हैं गैस बहरान की। कराची में सनतों को दरपेश गैस बहरान 11 रोज बाद भी हल नहीं हो सका। शहर के सबसे बड़े सनती इलाके साइट एरिया में गैस बंदिश के बाद 3000 से ज्यादा सनतें शदीद मुतासिर हैं। सनतकारों ने पीर से तमाम फैक्ट्रियां बंद करने जबकि मंगल को एहतजाज का ऐलान भी कर दिया है। इसी बारे में हबीब खान की रिपोर्ट देख लेते हैं। कराची में सनतों को 10 रोज से गैस की अदम फराहमी। साइट एसोसिएशन के सनतकारों ने पीर से तमाम फैक्ट्रियां बंद करने का ऐलान कर दिया। सनतकारों ने मंगल को गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज का भी फैसला किया है। सदर साइट एसोसिएशन ने इल्जाम आयद किया है कि सुई सदन गैस कंपनी की बद इंतजामी की वजह से सनतों को यौमिया 2.5 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। हुकूमत को शिकायत करने के बावजूद सूरत हाल बेहतर नहीं हुई। दूसरी जानिब गैस की बंदिश से दिहाड़ीदार तबका भी सबसे ज्यादा परेशान दिखाई देता है। हम आते हैं तो पता लगा ले ऑफ है। अब ले ऑफ से कौन हमारे घर चलेंगे, हम बच्चों की फीस कहाँ से देंगे, हम चूल्हे कैसे चलाएंगे, हम खाना कैसे पकाएंगे। मसला तो ये है, मामला सारे आप ये बड़ी बड़ी बातें करें। अब तब्दीली है, अब क्या तब्दीली है? तब्दीली तो ये आगे पहले अच्छा खाते थे, अब और बुरा खा रहे हैं। रोज़ाना ये मसला है हमारे साथ कि गैस का मसला। हम ड्यूटी पर आते हैं नौकरी पे ये कमाने के लिए, यहाँ आते तो देखते हैं गैस नहीं है। रोज़ आते हैं जी, गैस नहीं हमारी, कभी पानी नहीं, कभी गैस नहीं है। आते हैं सारा दिन बैठ रहे थे, वापस चले जाते हैं। दूसरी जानिब SSGC हुकाम कहते हैं कि सनती इलाकों को गैस के प्रेशर में कमी का सामना है। प्रेशर की बहाली का काम जारी है। गैस की फराहमी में जल्द बेहतरी आ जाएगी। कैमरामैन असगर अली के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। और मुश्किलात के इस भंवर में अवाम के लिए एक अच्छी खबर भी है, और वो ये कि ओगरा ने जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए फी लीटर तक की कमी की सिफारिश कर दी है। ओगरा ने वजारत खजाना को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी अरसाल कर दी है। पेट्रोल की कीमत में 9.5 रुपए फी लीटर तक कमी की सिफारिश की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर मजीद कमी की सिफारिश की गई है। अवाम के लिए अच्छी खबर है कि जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान जाहिर किया गया है। आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दें कि साबिक रुकने कौमी असम्बली अली रजा आबदी के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ सामने आई है। गवर्नर सिंध और IG सिंध ने अली रजा आबदी के वालिद अखलाक आबदी से राबता करके बताया है कि तहकीकात में कामयाबी मिली है। IG सिंध के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं, जबकि अहम गिरफ्तारी से मुतालिक 1-2 रोज में मजीद पहलू सामने आएंगे। इससे पहले लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए IG सिंध कलीम इमाम का कहना था कि पुलिस अली रजा आबदी के कातिलों के बहुत करीब पहुंच गई है, बहुत जल्द अच्छी खबर सुनाएंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। अली रजा आबदी साहब की कोई कातिलों को सुराग लग सकता है? बिल्कुल, हम बड़े करीब हैं। सिंध पुलिस अच्छा काम कर रही है और बहुत जल्द आपको खबर सुनाएंगे। बहुत से ऐसे केसेस हैं जो हमने रोके इस वाक़े से पहले जो होने वाले थे, लेकिन कुछ जो ऐसे स्लिप्स हुए जो मैनेज कर गए, उनकी भी लीड्स मिल गई हैं, उनको जल्द गिरफ्तार करेंगे। MQM के साबिक रुकन कौमी असम्बली अली रजा आबदी के कत्ल में तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया गया। तफ्तीशी हुकाम ने FIA की खिदमात भी लेने का फैसला किया है। जिले हैदर की रिपोर्ट देखते हैं। MQM के साबिक रुकन असम्बली अली रजा आबदी के कत्ल में तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया गया। तफ्तीश में अब FIA से भी मदद ली जाएगी। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले मकामी अफराद का डेटा चेक किया जा रहा है। होटलों में मुकीम अफराद की छानबीन और तफसीलात भी जमा की जा रही हैं। गुज़िश्ता 1 माह के दौरान जनूबी अफ्रीका, दुबई, शारजा और बैंकॉक से आने वालों की तफसीलात जमा कर ली गई हैं। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर एयरपोर्ट पर उतरने वाले कराची के रिहायशी मुसाफिरों की तफसीलात भी जमा की जाएंगी। दूसरी जानिब अली रजा आबदी कत्ल, PSP दफ्तर हमला और MQM पाकिस्तान के मिलाद पर हमलों की तमाम जावियों से तहकीकात जारी हैं। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक CCTV वीडियो से हासिल वाज़े तस्वीर को बैरूनी ममालिक से आने वाले मुसाफिरों के साथ मिलाया जाएगा। तफ्तीशी हुक्काम ने जनूबी अफ्रीका से टारगेट किलिंग टीम के आने का भी खदशा जाहिर किया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह MQM के मकतूल रहनुमा अली रजा आबदी के घर पहुंचे, जहां उन्होंने मरहूम के अहले खाना से ताज़ियत की। मुराद अली शाह का कहना है कि अली रजा आबदी तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन जालिमों को सजा मिलनी चाहिए। फाहद कमर की रिपोर्ट देखते हैं।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह मकतूल अली रज़ा आब्दी के अहले खाना से ताज़ियत के लिए उनकी रिहाइश का पहुँचे। अली रज़ा आब्दी के वालिद से मुलाकात की और मुल्ज़मान को सज़ा दिलवाने की यकीन दहानी कराई और कहा अली रज़ा आब्दी को थ्रेट से मुताल्लिक इंटेलिजेंस इदारों ने कोई अलर्ट नहीं दिया था। हमने एक मीटिंग की थी, हमें कोई इंटेलिजेंस की तरफ से कोई ऐसी स्पेसिफिक थ्रेट का नहीं बताया गया था। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अली रज़ा आब्दी वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन जालिमों को सज़ा मिलनी चाहिए। इस शहर में किसी को भी अमन खराब नहीं करने देंगे। 26 तारीख को अली रज़ा आब्दी के कत्ल के बाद एक मीटिंग की थी। मैंने CTD, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज को कहा है कि आप वो अपना नेटवर्क बीफ अप करें। वज़ीर आला सिंध ने मजीद कहा कि गवर्नर रूल किसी सूबे में लगाने के लिए असम्बली की सिफारिश जरूरी है। कैमरामैन जहांजेब अली के हमरा फहद कमर, 24 न्यूज़, कराची। कराची में दहशतगर्दी की नई लहर ने जन्म लिया है। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिख दिया। रहनुमाओं को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा भी कर दिया। इसी हवाले से फहद कमर की रिपोर्ट देखते हैं। MQM के साबिक रहनुमा अली रज़ा आब्दी पर हमले के बाद MQM पाकिस्तान के दीगर रहनुमाओं की जानों को खतरा लाहक हो गया। सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खत इरसाल कर दिया। खत में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शिकवा किया कि अब तक पार्टी के किसी रहनुमा को सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। कराची में दहशतगर्दी की नई लहर ने जन्म लिया है। MQM के रहनुमा, मुंतखब अरकान असेंबली और बल्दियाती नुमाइंदों को निशाना बनाया जा सकता है। 8 दिसंबर को MQM के मिलाद और 25 दिसंबर को अली रज़ा आब्दी का कत्ल शहर में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल खराब करने की साजिश है। वज़ीर आज़म वाक़यात का नोटिस लेते हुए सिक्योरिटी इदारों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने के अहकाम दें। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि सूबाई हुकूमत को रहनुमाओं की सिक्योरिटी के लिए लिस्ट फराहम कर चुके, लेकिन कोई इक़दाम नहीं किए गए। अहम खबर शामिल करेंगे। चीनी काउंसिल खाना हमले केस में तफ्तीशी हुकाम हमले से मुतालिक खोज लगाने और जिम्मेदारों को गिरफ्तार करने में नाकाम हो गए। CTD हुकाम ने एक क्लास रिपोर्ट खुसूसी अदालत में जमा करवा दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हलाक होने वाले दहशतगर्दों से BLA का झंडा बरामद हुआ है। कराची में आइस और शीशे का नशा आम होने लगा। 24 न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। आइस के नशे में मुलविस 4 तालिब इल्मों को गिरफ्तार कर लिया गया। वकार अब्बास की रिपोर्ट देखते हैं। नई नस्ल, नया नशा और नशे की तरसील के तरीके भी नए। 24 न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद कराची पुलिस हरकत में आ गई। आइस के नशे में मुलविस 4 तालिब इल्मों को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक क्लिफ्टन और डिफेंस के इलाकों में मजीद बड़ी गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। आइस के नशे की फराहमी के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि पुलिस ने अब तक 30 डीलर्स को गिरफ्तार किया है। दूसरी जानिब गुलशन इकबाल में मौजूद 6 बड़ी जामियात के तलबा को नशे की लत में लगाने वाले माफिया के खिलाफ SP गुलशन ताहिर नूरानी ने हिकमत अमली तरतीब देने का फैसला कर लिया। कहते हैं जामियात के नज़दीक रेस्टोरेंट्स पर नजर रखी जाएगी। जहाँ भी इस तरह के इंस्टीट्यूट के आगे ये चीज़ें होंगी उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे और यकीन हम मुतल्लिका इदारों को लिखेंगे कि ये जो रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, जहाँ पे पहले तो चाय पिलाई जाती है, फिर खाना खिलाया जाता है, बाद में बेसमेंट पर या छत के ऊपर शीशा खुल जाता है, तो लिहाजा उनको पहली फुर्सत में उनको जो है बंद कर दिया जाए। SP ताहिर नूरानी का कहना है कि ज्यादातर आइस ऑनलाइन मंगवाई जा रही है। इसके असल किरदारों तक पहुंचने के लिए साइबर क्राइम विंग से रब्ता किया है। ज़्यादातर ये नशा जो है वो ऑनलाइन मंगाया जाता है और इस चीज़ पे भी हम काम कर रहे हैं कि किस तरीके से ये ऑनलाइन आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा। साइबर क्राइम वालों से हमारा इंटच है, फिर हमारी इंफॉर्मेशन भी ये चल रही है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर ये नशा अंदर कैसे पहुँच जाता है। पुलिस के मुताबिक नई नस्ल को आइस और दीगर नशों की लत लगाने वालों के खिलाफ पुलिस भरपूर एक्शन के लिए तैयार है। वकार अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। कराची की नन्ही ताइबा पुरस्कार बीमारी का शिकार हो गई। 15 साला ताइबा मूजी मर्ज के बाइस चलने फिरने से ही माजूर हो गई। इलाज कराते कराते लाखों का कर्जा हो गया, लेकिन मर्ज की तशखीस नहीं हो सकी। वालिदैन अपनी बच्ची के इलाज के लिए हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। इसी हवाले से समीन नवाज की रिपोर्ट देखते हैं। ताइबा की उम्र इस वक्त 15 साल के लगभग है और गुज़िश्ता 4 सालों से वो एक ऐसी बीमारी में मुब्तला है जिसके बायस वो चलने फिरने से माजूर और अपने कामों के लिए किसी दूसरे की मोहताज हो चुकी है। 4 साल हो गए
ये मसला आ रहा है। गिर जाती थी, स्कूल भी माशाल्लाह पढ़ रही थी, 3 क्लास में, स्कूल से भी कई दफ़ा गिरी थी। मैडम बुलाती थी कि आपकी बेटी गिर जाती है। बहुत जब से इंशाल्लाह इलाज कराने की बहुत कोशिश की है, तो टेस्ट पे टेस्ट, नसें कट गई, सब कह रहे हैं कोई पता नहीं चल रहा। हालात से मायूस ताइबा के वालिद का कहना है कि बच्ची के इलाज के लिए अपनी दुकान भी गिरवी रखवा दी और लाखों का मकरूज हो चुका हूँ, लेकिन पुरस्रार बीमारी का इलाज तो दूर, कोई सुराग भी नहीं मिलता। समझ नहीं आता कि कहाँ से अपनी बच्ची के लिए शिफा ले आऊँ। बच्ची के लिए मैं बहुत सारा भागा हूँ, अब लोगों का कर्जदार हो चुका हूँ। 500 रुपये मेरी दिहाड़ी है, नाई का मैं काम करता हूँ, मगर अभी इतना परेशान हो गया हूँ लोगों से कर्जा ले लेके, अभी मैं क्या करूँ। मैं बच्ची का इलाज करवाना चाह रहा हूँ। गुर्बत की तारीकी में छोटे छोटे ख्वाबों के दीप जलाए नातख्वां बनने की ख्वाहिशमंद ताइबा मुंतजिर है किसी ऐसे मसीहा की जो उसके इलाज के साथ साथ वालिद की परेशानी भी कम करने में मुआवनत कर सके। कैमरामैन असगर अली के हमरा समीन नवाज, 24 न्यूज़, कराची। लाहौर में लड़की की सहेली से शादी का अनोखा वाकया सामने आ गया। सोबिया ने शिजा को बीवी बनाया और खुद शोहर बन बैठी। अपनी नौयत का पहला केस सेशन कोर्ट में पहुंच गया। अदालत ने पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली है। इसी हवाले से शाहीन अतीक की रिपोर्ट देखते हैं। दिलदारी और दिलफिकारी में यकता, शहर लाहौर की तारीख में अनोखा वाकया। 2 लड़कियों की दोस्ती में इतनी गाड़ी छनी के बाद मुबैना शादी पर आकर खत्म हुई। लड़की का अपनी सहेली से शादी का दावा, अजब तमाशा लगाकर बीवी बनाकर घर भी ले आई। सोबिया ने उसे अगवा कर लिए, सारे पुलिस वाले उसके साथ रले हुए, कोई हमारी बात भी नहीं सुन रहा। वो इतनी गंदी लड़की है, उसके फैसले उसकी मानी जा रही है, सारे पास उसकी वो मोटरसाइकिल चला रही, शराब में पी रही है। खेल तमाशे का वालिदैन को इल्म हुआ तो बेटी को घर ले आए, मगर शोहर होने की दावेदार लड़की को सख्त नागवार गुजरा। करीबी थाने में माँ बाप के खिलाफ अगवा के मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। सोने पर सुहागा ही हुआ कि डकैती लूट मार के मुकदमे दर्ज करने से इनकारी पुलिस ने बिना सोचे समझे वालिदैन के खिलाफ बेटी के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। पूरे ही खानदान के ऊपर एक अगवा की FIR दे दी गई है। हालांकि जो बच्ची जो है, इनकी बच्ची उसी के पास मौजूद है, और लेकिन FIR जो है इनके अंगेंस्ट दे दी गई है। ये तो इंसाफ की और कानून की धज्जियां उड़ाने के बराबर है। बिला आखिर पुलिस की नालायकी का खुमियाजा कानून को भुगतना पड़ा। सेशन अदालत ने वालिदैन की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। देखने वाली हर आंख और सुनने वाले हर कान को इस अनोखी मोहब्बत के ड्रॉप सीन का शिद्दत से इंतजार है। और अब मुआशरती बुराइयों और जराइम से मुतालिक खबरों पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। नौशहरा में तीसरी जमात की तालिबा दरिंदगी का शिकार। मुलजम ने बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करके लाश कब्रिस्तान के करीब फेंक दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक हो गई। हंगू के इलाके मोहम्मद ख्वाजा में 2 चचाजाद भाई तालाब में डूबने से जान बहक हो गए। तलहा और फाहद की उम्रें 4 से 5 साल के दरमियान थी। पुलिस के मुताबिक बच्चे तालाब के करीब खेल रहे थे। खुशी में की गई फायरिंग ने सफ़े मातम बिछा दिया। सरगोदा में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से एक हलाक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। कामोकी में मुकदमा दर्ज करवाने पर मुलजम ने अनोखा बदला ले लिया। मुद्दई के घर को आग लगा दी। मुलजम इमरान ने डॉक्टर अतीक के घर पर पेट्रोल छिड़कर आग लगाई। अहले मोहल्ला ने आग पर काबू पा लिया जबकि मुलजम फरार हो गया। लाहौर में वन व्हीलर्स की शामत। न्यू ईयर नाइट पर वन व्हीलिंग का प्रोग्राम बनाने वालों के खिलाफ जिला इंतजामिया और पुलिस मुतहरक हो गई। रिकॉर्ड में मौजूद वन व्हीलर्स को धर लिया गया। मौसम के हवाले से बात करेंगे। शदीद धुंध के बायस पेशावर से रशेकई तक मोटरवे को बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। शदीद धुंध के बायस मोटरवे को पेशावर से रशेकई तक बंद कर दिया गया है, जबकि मोटरवे पुलिस की जानिब से हिदायत की गई है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। शदीद धुंध है और इसी वजह से मोटरवे को बंद किया गया है, जबकि GT रोड पर ट्रैफिक रवां दवा है, लेकिन उसकी रफ्तार भी इंतहाई सुस्त है और पुलिस की जानिब से ये हिदायत की गई है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। कुछ सियासी मामलात की बात कर लेते हैं। बात करेंगे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की, जिनका कहना है कि उर्दू में बात इसलिए करता हूं क्योंकि इस्लामाबाद में बहरे, गूंगे और अंधे बैठे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि घोटकी के लोगों को उनका हक क्यों नहीं मिलता। मैंने कोयले की कान के ठेके नहीं लिए। हमने ये गुनाह किया कि अवाम को उनका हक दिया। हमने 18वीं तरमीम में सूबों को हुकूक दिए। मजीद उन्होंने क्या कहा, आप भी देखिए। उर्दू में इसलिए बात करता हूँ कि इस्लामाबाद में बहरे, गूंगे और अंधे लोग रहते हैं।
अगर हमने 18th अमेंडमेंट में नेचुरल रिसोर्सेज प्रोविंस को उसका हक दिया है, अब गवर्नमेंट का गोट की क्या कसूर है कि इनके यहाँ जो रिसोर्सेज हैं उनका हक इनको नहीं मिलता? तो मेरी गैस फील्ड्स तो नहीं है, ना मेरी कोल माइंस है। हमारे पास जो कोल माइंस थी उसकी लीसेस मैंने नहीं लेके अपनी कोल माइंस बना दी। बहुत दूर तक बात थी, अगर ये बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, इसमें हर चीज आएगी। फिलॉसफी पीपल्स पार्टी की ये है कि पहला हक गरीब का है, पहला हक वहाँ के लोगों का है। यही फिलॉसफी आप बलूचिस्तान में आजमाएं, यही फिलॉसफी आप केपी में आजमाएं, यही फिलॉसफी आप पंजाब में आजमाएं, तो आपको समझ आएगी कि लोग और जुड़ते जाएंगे। आप दुआ करें कि अल्लाह हमें इज्जत दे, हमें कब्र तक ईमान दे, बाकी सब हम खुद कर लेंगे। ये भुट्टो। और बिलावल भुट्टो कहते हैं कि ईसीएल नहीं, मसाइल की वजह से तहरीक चलाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि कोई मुकद्दस गाय नहीं होनी चाहिए, इस वक्त मुल्क हाथ से निकलता जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुराद अली शाह सिंध के बेहतरीन वज़ीर आला हैं। जो भी बिल आएगा ना, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इस बिल का साथ देगी तो हमें इंसिस्ट करना चाहिए कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो, कोई मुकद्दस काई नहीं होना चाहिए, हर इदारा का अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर तहरीक चलाएगी तो हम अवाम के लिए तहरीक चलाएगी, हम जमहूरियत के लिए तहरीक चलाएगी, हम इंसानी हकूक़ के लिए तहरीक चलाएंगे, हम ECL की वजह से। मैं समझता हूँ कि मुराद अली शाह साहब सिंध का बेहतरीन चीफ मिनिस्टर है। जबकि मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध का हक लेकर रहेंगे, सिंध के लोगों से दुश्मनी की जा रही है, खान साहब को पता ही नहीं कि हुकूमत करनी कैसे है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि उसको हुकूमत दी है तो सिखा भी देते कि हुकूमत कैसे करनी है। इमरान खान को उनकी बीवी बताती हैं कि वो वज़ीर आज़म है। मजीद उन्होंने क्या कहा आप भी देखिए। लेकिन मेरा भी अच्छा खासा तजुर्बा हो गया है, मैं इनके साथ मीटिंग में भेजता हूँ, इनको कुछ पता नहीं है कि हुकूमत कैसे करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी तकरीर में कहा था ना कि भाई इसको मुसल्लत करना था तो इसको कुछ सिखा तो देते, इसको कुछ सिखा तो देते कि हुकूमत होती कैसे है। और ये मैं किसको कह रहा हूँ, इसलिए कि हमें तो आम कहते हैं ना, इसको तो खुद पता नहीं है कि मैं वजीर आजम हूँ, इसको पीरनी से पता चलता है कि वो तुम वजीर आजम हो, तो उस पीरनी को कहो कुछ इसको सिखा भी दो कि हुकूमत करनी कैसे है। तो वाकई इसको कुछ नहीं पता, इससे उम्मीद भी नहीं है, ये हुकूमत नहीं चला सकते। और जब हुकूमत चलानी नहीं आती तो फिर यही करते हैं जो आजकल कर रहे हैं कि सिर्फ तकरीरों में लोगों को चोर डाकू कहना, अपनी जो कारकर्दगी है उस पर बात नहीं करना। 100 दिन में क्या किया, कुछ नहीं किया, पूरा बताया कि जी 100 दिन में क्या किया, हमने हर चीज़ का प्लान बनाए, ये 100 दिन हो जाए या जितने दिन ये और रहे, इनसे कुछ नहीं होना। लेकिन हम अपना हक लेके रहेंगे। हम गरीबों को जो ये मादनियात इस सिंध की सूबे की हैं जिस पे हक आईनी तौर पे सिंध का है। और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं की बात करें तो सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं कि हुकूमत एहतसाब के नाम पर दोहरा मयार बंद करे, तहकीकात के लिए सारी जमात हाजिर है तो नाम ECL में क्यों डाले। जबकि नवीद कमर का कहना है कि तहरीक इंसाफ वाले पाकिस्तान को मजबूत करने का नहीं सोच सकते। आप कर रहे हैं एहतसाब, आप करिए एहतसाब अपने आप के लिए पे। उनके अनोखे लाडले क्यों एग्जेम्प्ट हैं? बहुत सारे हैं ना, जुल्फी बुखारी के लिए तो एयरपोर्ट तक बैठे रहते जब तक ECL से नाम निकला, वो तो सामने आए, लेकिन यहाँ तो प्रोजेक्टर पे फिल्में चल रही हैं। तो ये ड्यू प्रोसेस ज़रूरी है और फिर ये बिला इम्तियाज होना चाहिए। सारा एहतसाब का अमल कोई मानेगा नहीं, सिर्फ उसे इंतकामी कार्रवाई समझेगा। सिर्फ फेडरेशन के तौर पे जो है वो मजबूत हो सकता है, यही हमारा आइन कहता है और यही हमारा कॉन्सेप्ट है जो कायदे आज़म ने दिया। ये जो बाकी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं पाकिस्तान के साथ, उसमें पाकिस्तान 2 हिस्सों में तो बटा है और कुछ नहीं। ये नहीं है कि मेरी पार्टी है उसके ऊपर ये जो है इस वक्त ज़र्ब लगाई है, लेकिन आप खुद सोचें कि अगर एक फेडरेटिंग यूनिट्स में से 4 में से एक को बिल्कुल आप पैरालाइज कर दें, क्योंकि आप गवर्नेंस रूल लगा नहीं सकते, आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो आप बैकडोर से गवर्नर रूल लगाने के चक्करों में हैं या एक सिंगल यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाने के चक्कर में हैं, ये बड़ा एक डेंजरस लाइन।
पीपल्स पार्टी की क़यादत का नाम ECL में डालना नई बात नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। मंजूर वसान का कहना है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया गया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत पीपल्स पार्टी को डरा धमका कर मिड टर्म इलेक्शन जीतना चाहती है। मंजूर हुसैन वसान खैरपुर में मीडिया से बात कर रहे थे। और जहाँ तक गिरफ्तारियों का है तो मेरे ख्याल में गिरफ्तारियों का जिस तरह से ECL में डालना और केसेस बनाना तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन गिरफ्तारियों से जेल जाने से या तकलीफ उठाने में कोई पीपल्स पार्टी कभी कमज़ोर नहीं हुई है। इसका रिकॉर्ड पास्ट में है, फेस किया है, फेस करेंगे, लेकिन जो करने वाले हैं वो भी तैयार रहे कि उनकी भी बारी आने। 18वीं तरमीम के खिलाफ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। विफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वावडा का कहना है जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करूंगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। 18वीं तरमीम के बाद हमारा ये एरिया नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं 18वीं तरमीम के खिलाफ खड़ा हूँ, हमेशा से खड़ा रहूंगा, चाहे लोग छत से लग जाएं, और हम वफाक की तरफ से उनकी हेल्प कर रहे हैं और हम इनको नहीं छोड़ेंगे। और ऐसा कोई वाक़या अगर हुआ तो मेरे ख्याल से अब आप चौक पे हलाकतें देखेंगे ऐसे गुंडे, कातलों और बदमाशों की। मुझे बहुत सारी रिकमेंडेशंस आ रही हैं, मुझे बहुत बोला जा रहा है इसके ऊपर, लेकिन मैं कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करूँगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत PAC का पहला इजलास हुआ। कमेटी ने नैब और FIA को भेजे गए केसेस की पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। शहबाज शरीफ कहते हैं मुस्लिम लीग नून के दौर के ऑडिट नहीं देखूंगा। आजकल नैब और FIA बहुत फुर्तियां दिखा रहे हैं। इसी हवाले से बशीर चौधरी की रिपोर्ट देखते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का पहला बाज़ाब्ता इजलास चेयरमैन शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ। सेक्रेटरी कमेटी ने बताया कि कमेटी के पास ज़ेर इल्तवा ऑडिट एतराज़ात की तादाद 18,043 है। ज़ेर इल्तवा ग्रांट्स 941 हैं, जबकि कमेटी ने नैब को 168 और FIA को 56 केसेस भेज रखे हैं। रुकने कमेटी शेख रोहेल असगर ने सवाल किया कि जो केसेस नैब और FIA को भेजे उनका नतीजा क्या निकला, क्या नैब पीर तक तफसीलात दे सकेगा? तो शहबाज शरीफ बोले कि नैब और FIA तो आजकल बहुत फुर्तियां दिखा रहे हैं, ये भी बताएं कि उन केसेस का क्या हुआ। 18वें स्केल के डिप्टी डायरेक्टर FIA की कमेटी में शिरकत पर कमेटी अरकान ने एतराज उठाया तो शहबाज शरीफ ने आइंदा 19 ग्रेड से कम अफसर को इजलास में शिरकत न करने के अहकामात पर अमल कराने की हिदायत कर दी। चेयरमैन कमेटी शहबाज शरीफ ने वाजे किया कि वो मुस्लिम लीग नून के दौर के ऑडिट एतराजात नहीं देखेंगे। उन्होंने तजवीज़ दी कि आइंदा इजलास में 4 ज़ैली कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी, ताहम 2010 से 2013 तक के एतराजात पर अवामी अहमियत के मसाइल मरकजी कमेटी ज़ेर गौर लाएगी। बशीर चौधरी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। लोग जल्द और सस्ता इंसाफ चाहते हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठा दिया गया। उन्होंने कहा कि जिसका भी नाम एहतसाब लिस्ट में हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। PTI का भी कोई वजीर शामिल हुआ तो जरूर कार्रवाई होगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। देखें, हर उस शख्स की इंक्वायरी होनी चाहिए जिसका एहतसाब में केस है, खा वो PTI का है या किसी और का है। मैंने आपको पिछली दफ़ा कह दिया था, अगर इन दूसरे चोरों को 7 साल कैद हुई है, अगर हमारी करप्शन हो तो हमें 14 साल कैद। ये सारे गंदे अंडे इकट्ठे हो जाएंगे मार्च से पहले, और मैंने आपको कहा कि 30 मार्च पे पहले झाड़ू फिर जाएगा, फल सफाई हो जाएगी। PTI रहनुमाओं का रवैया जमहूरी नहीं। नून लीग के रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद का कहना है कि क्या पंजाब में सिर्फ एक पार्टी की हुकूमत चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ भी ज्यादती की जा रही है। अपने मुखालिफिन को गालियां दें, उनको पकड़ दकड़ करें, उनकी मारपीट करें, बगैर पूछे उनके साथ जो हो सकता है वो आप करते चले जाएं, पॉलिटिकल पार्टीज को ट्रिम करते जाएं। तो सर, दिस इज व्हाट फाशिज्म इज। ये डेमोक्रेसी कतन नहीं है। लेकिन इसमें सिर्फ जो बात बाइस तशवीश है कि जितनी ऑपोजिशन है वो किसी न किसी तरीके से वो लोग जो हुकूमत मुखालिफ लोग हैं उनको सिर्फ इमरान खान की मुखालफत की सज़ा उसकी इस जुर्म में वो किसी न किसी कानूनी तरीके से, चाहे वो ECLs में डाल दें, केसेस में डाल दें, करप्शन के केसेस हैं या नहीं हैं, अलेज्ड करप्शन पे उनको आप कन्विक्टेड करप्ट साबित करके खड़े हो जाएं। पूरी गवर्नमेंट ये कर रही है। अभी तो करप्शन का इल्ज़ाम लगा कि ये तुमने की। एक रिपोर्ट आई, वो जो पैराज, जो ऑडिट पैराज हैं, जो प्रोसीजरल इम्प्रोप्राइटरी के ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, उसमें से फाइनेंशियल करप्शंस निकाल के लोगों के सर पे डाली जा रही है।
ये शहबाज साहब का केस टेक्स्ट बुक केस है। वो जो सिंध के लोगों के नाम ECL में आए, आई हैव नॉट फॉलोड द केस, लेकिन बादिउल नजर में ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती हो रही है। दूसरी जानिब वजीर आजम सफीरों से खिताब करते अदाद शुमार बयान कर बैठे। पाकिस्तान में सालाना 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक अमरीकी रिपोर्ट का हवाला दिया। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट खुद इस रिपोर्ट की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। इमरान खान नेक नीयत है, यकीन है, मगर क्या ये ज़रूरी है कि हर नेक नीयत जब कोई बात करे तो वो मुसद्दका भी हो? जुम्मे के रोज सफीरों की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका का एस्टिमेट करता है कि 10 अरब डॉलर की सालाना मनी लॉन्ड्रिंग है। यकीनन वज़ीर आज़म ने रिपोर्ट पढ़ी होगी, मगर वो जिस रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं इसके बारे में खुद अमरीकी भी यकीन से कुछ कहने को तैयार नहीं। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट से पाकिस्तान में जब 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग का पूछा गया था तो उनके नुमाइंदे का कहना था ये एक थर्ड पार्टी का सर्वे था, हमने तो बस कोट किया है। मनी लॉन्ड्रिंग। बात यही नहीं रुकती। हुकूमत और खुद वज़ीर आज़म कई मामलात पर कंफ्यूजन का शिकार नजर आते हैं। मसलन IMF के पास जाने या ना जाने का मामला। कभी कहते हैं जाएंगे, कभी कहते हैं नहीं जाएंगे, कभी कहते हैं शराइत नहीं मानेंगे और कभी कहते हैं अपनी शराइत पर जाएंगे। हकाइक ये हैं कि IMF जो शराइत रख सकता है वो सारे इक़दामात तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत पहले ही कर चुकी। महंगाई का तूफान आसमान से तो नहीं आया, हुकूमती इक़दामात का नतीजा है। तो फिर ये मैं ना मानूं की रट क्यों? तब्दीली आ नहीं रही बल्कि तब्दीली आ गई है। तारीख में पहली बार वुज़रा बजरिया ट्रेन जाती खर्चे पर भावलपुर रवाना हो गए। आज भावलपुर में सूबाई काबीना का खुसूसी इजलास वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत होगा। वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत बहावलपुर में होने वाले पंजाब काबीना के खुसूसी इजलास में शिरकत के लिए सूबाई वज़रा में महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, डॉक्टर मुराद राज, चौधरी मोहम्मद अकरम और तैमूर भट्टी लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंचे। वज़रा दूसरे मुसाफिरों की तरह अपनी ट्रेन का इंतजार भी करते दिखाई दिए। सूबाई वज़रा को बगैर सिक्योरिटी देखकर सेल्फी बनाने वाले भी उमड़ आए और खटाखट तस्वीरें बनाने लगे। रवानगी से कबल मीडिया से बातचीत करते हुए सूबाई वज़रा डॉक्टर मुराद राज, मियां महमूद रशीद और यास्मीन राशिद का कहना था, तारीख में पहली बार इजलास में शिरकत के लिए वज़रा जाती खर्चे पर ट्रेन के जरिए जा रहे हैं। मैं आपको यकीन से बताती हूँ कि हम इंशाल्लाह अगले 3 महीने के अंदर वहाँ इस्लाहात लेके आ रहे हैं, जो बेसिक हेल्थ यूनिट से लेकर ऊपर तक अमला भी मौजूद होगा, दवाइयाँ भी मौजूद होंगे। सबसे पहले हम साउथ पंजाब के 2 शहर हैं, चिश्तियाँ और लोधरा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम वहाँ पर लोगों को अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशंस मांग रहे हैं और फरवरी 1 को इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर सेरेमनी करेंगे। आपको हर किस्म के जो इशू हैं वहाँ पे बहावलपुर के लोगों के और उस साउथ पंजाब के लोगों के, उनको वहाँ पे मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज और सारा अमला जो जा रहा है वो वहाँ पे जाके उनको डील करेगा, जो भी उनके डेली इशूज हैं। वज़रा का कहना था कि साबिका हुकूमत ने जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। काबीना जनूबी पंजाब की महरूमियों का जायजा लेगी। वज़ीर आज़म अपना घर हाउसिंग प्रोग्राम का आगाज भी जनूबी पंजाब से ही कर रहे हैं। कप्तान का दावा है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार इंतहाई सादा हैं, लेकिन भावल सादगी का पोल उस वक्त खुल गया जब वो 11 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में सर्किट हाउस से नूर महल गए। तो आपको बताएं कि कप्तान हमेशा से ये दावा करते हैं कि सरदार उस्मान बुज़दार इंतहाई सादा हैं, लेकिन भावलपुर में आज उनकी सादगी का पोल उस वक्त खुला जब वो 11 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में सर्किट हाउस से नूर महल गए। वज़ीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा की जिस मिसाली पुलिस के गुण गाते नहीं थकते, उनके शिकायत सेल को सबसे ज्यादा शिकायत खैबर पख्तूनख्वा की मिसाली पुलिस की ही मिली हैं। इसी हवाले से बता रहे हैं आफ्ताब मोहम्मद। जी आफ्ताब। जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान कंप्लेंट सेल को अब तक जितनी भी शिकायत मौसूल हो गए हैं तो उसमें से ज़्यादातर शिकायत खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले से
मौसूल हो चुके हैं। एक तरफ सूबाई हुकूमत इस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ख़ुद इसको मिसाली पुलिस करार दे रही है, दूसरी जानिब कंप्लेंट सेल डेटा के मुताबिक 1300 से ज़ायद शिकायत मिसाली पुलिस के हवाले से वहाँ पर मौसूल हो चुके हैं, जिसमें 474 जो शिकायत हैं वो हज़ारा डिवीज़न के हैं, जिसमें हरीपुर, एबटाबाद और इस तरह मानसेरा शामिल हैं। और वहाँ पुलिस के हवाले से शिकायत मौसूल हो गए हैं। पुलिस जहाँ पर शहरों के साथ उनकी लड़ाई हो जाती है, कहीं पर उनके साथ बदतमीज़ी की जाती है, सर्च ऑपरेशन किए जाते हैं, जहाँ पर इसी हवाले से ज़्यादातर शिकायत इन वाक़यात के से मुतालिक मौसूल हो चुके हैं। इस तरह मर्दान में 151 में, सवाबी में 88, वो भी सर फहरिस्त है। और इस तरह इसी हवाले से पुलिस हुकाम का कहना है कि 503 के जो शिकायत हैं उनका अज़ाला हो चुका है, दीगर पर काम जारी है। देखा जाए तो ओवरऑल डेटा में मिसाली पुलिस जहाँ पर करार दिया जाता है तो सबसे ज़्यादा वज़ीर आज़म जो कंप्लेंट सेल है तो इसी मिसाली पुलिस के हवाले से। शुक्रिया आपका। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 22 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। दहशतगर्द मजमूई तौर पर कराची अब्बास टाउन समेत सिक्योरिटी फोर्सेस, शहरियों, कौमी अमलाक, तालीमी इदारों पर हमलों में मुलव्विस थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 22 खतरनाक दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द मासूम शहरियों, सिक्योरिटी फोर्सेज, पुलिस एहलकारों के कत्ल के अलावा फिरका वाराना कत्लो गारत में मुलव्विस पाए गए थे। जिन दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक की गई उनमें अब्बास टाउन कराची और निश्तर पार्क कराची में हमले करने वाले दहशतगर्द भी शामिल हैं। ISPR का कहना है तमाम दहशतगर्द मजमूई तौर पर 176 शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस पाए गए। सजाए मौत पाने वालों में खैरदीन, इनामुल्लाह, आलम शेर, इरफान, मोहम्मद इसहाक, मोहम्मद शफीक, सुल्तान महमूद, मोहम्मद ताहिर, जफर अली, उमर करीम, मोहम्मद शेर, रहमत शाह, बख्तावर, रशीदुल्लाह, फहीमुद्दीन, जाहिर शाह, सईद मोहम्मद, अरब जान, मोहम्मद इसहाक, तनहाज अली और अब्दुल राफे शामिल हैं। ISPR के मुताबिक फौजी अदालतों ने 15 मुजरमान को मुख्तलिफ अरसे की कैद की सजाएं भी सुनाई, जबकि इन अदालतों से सजा याफ्ता 2 मुल्जिमान को बरी भी किया गया। वतन को जब भी जरूरत पड़ी पाक फौज के जवान मुल्क की दिफा में पेश रहे। पाकिस्तान के अजली दुश्मन भारत को हर महाज पर नाको चने चबवाए और जानों का नजराना भी पेश किया। वतन के लिए जानें कुर्बान करने वाले शहीदों के बारे में ये रिपोर्ट देखते हैं। पिंड दादन खान के शहीद हवालदार फजल अहमद की 47वीं बरसी मनाई गई। हवालदार फजल अहमद ने 71 की जंग में हुसैनी वाला के मुहाज पर बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। सरगोदा के नवाही इलाके शाहपुर में पाक फौज के शहीद फौजी जवान मोहम्मद सकलैन की 4थी बरसी मनाई गई। शहीद के अहले खाना का कहना है कि मोहम्मद सकलैन की शहादत पर फख्र है। टोबर टेक सिंह के मोहम्मद अदनान शहीद ने 28 दिसंबर 2010 को पांडो सेक्टर कश्मीर बॉर्डर पर दुश्मनों से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। उनकी 10वीं बरसी पर भी शहीद के वालिदैन का जज्बा दीदनी था। चिन्योट के मोहम्मद शहबाज शहीद खैबर एजेंसी में वतन की हुर्मत पर कुर्बान हुए थे। मोहम्मद शहबाज के वालिदैन का कहना है कि हमारे और बेटे होते तो वो भी वतन पर कुर्बान कर देते। चवालीस साल कबल शुजाआबाद से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के जवान अमानत अली ने 28 दिसंबर 1974 को पत्नी के मुकाम पर जामे शहादत नोश किया।
और अहम खबर के चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी का कहना है कि कप्तान और कोच से मुलाकात हुई। मौजूदा सीरीज पाकिस्तान के लिए अहम है। कोच हमेशा खिलाड़ियों से परफॉर्मेंस के बारे में पूछता है। 24 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीसीबी का कहना था कि ड्रेसिंग रूम में गर्मी सर्दी हो जाती है, मगर इन बातों को मीडिया में उछालना ज्यादती है। ग्राउंड में मीडिया नहीं, खिलाड़ी खेलते हैं। पीसीबी के चेयरमैन एहसान मानी का यह कहना है कि कप्तान और कोच से उनकी मुलाकात हुई है और मौजूदा सीरीज पाकिस्तान के लिए अहम है। दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हैं। लाहौर के काजी एपेक्स ग्रामर स्कूल पाक अरब सोसाइटी में तकरीब तकसीम इनामात हुई। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने पोजीशन होल्डर्स, तलबा और तालिबात में कैश इनामात और मेडल्स तकसीम किए। इसी बारे में जुनेद रियाज की रिपोर्ट देखिए। पाक अरब सोसाइटी में वाक़े काजी एपेक्स ग्रामर स्कूल में होने वाली सालाना तकरीब तकसीम इनामात में सूबाई वजीर तालीम मुराद रास ने शिरकत की और पोजीशन होल्डर्स, तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए। मुराद रास का कहना था कि कम फीस स्कूल भी मयारी तालीम फराहम करने में हुकूमत का साथ दे रहे हैं। उनके क्लासरूम्स देखें और इनके देखें, वो ले रहे हैं फीस 20,000 से लेके 45,000 रुपए तक, मुझे पता है। इनका क्लासरूम जाके देखें 4200 के अंदर उनसे बेहतर क्लासरूम इनके हैं। सालाना तकरीब के मौका पर तालिबात की जानिब से मिली नगमे और टैबलोज भी पेश किए गए। पाक ऐवान तालीम के सरपरस्ते आला काजी नईम अंजुम का कहना था कि पोजीशन होल्डर्स तलबा की कारकर्दगी के तसलसल को बरकरार रखने के लिए उन्हें इनामात से नवाजा जाना बहुत जरूरी है। तालीमी इदारों में बच्चों की कारकर्दगी को सराहने से जहां उनकी हौसला अफजाई होती है, वहीं उनकी शख्सियत में भी निखार पैदा होता है। कराची पुलिस के शोबा तफ्तीश में तब्दीली की लहर। आला अफसरान के इजलास में तमाम अजला में शोबा तफ्तीश को थानों से अलग करने का फैसला किया गया है। इसी बारे में मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे दानियाल सईद हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, बताइएगा इस इकदाम के बारे में। जी बिल्कुल, कराची पुलिस में एक तब्दीली देखने में आई है। अब से कुछ दिनों कबल आला पुलिस अफसरान का एक इजलास हुआ था जिसमें ऑपरेशनल पुलिस और इन्वेस्टिगेशन पुलिस को अलहदा तरीके से डील करने का, अलहदा तरीके से उनको जगह फराहम करने का कहा गया था। और अब इसका बाकायदा तौर पे देखने में आ रहा है कि जिला ईस्ट में जो है तफ्तीशी अफसरान जो है उनके लिए एसपी जमशेद का जो दफ्तर है उसमें जगह फराहम की गई है। उनके लिए अलग से रूम्स बनाए गए हैं जहां पर तफ्तीश जो है अफसरान करेंगे। जिला ईस्ट के तमाम तर जो अफसरान हैं, 8 नए शोबे तफ्तीश के हवाले से बनाए गए हैं, जिसमें दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा बराए तावान, स्ट्रीट क्राइम, दीगर राजधानी के जो वाकयात हैं उनको इन 8 शोबे बनाए गए हैं, जिसमें 39 अफसरान हैं SHO लेवल के, DSP लेवल के। वो इनकी जो है वो तहकीकात करेंगे। हर शोबेजात, जो 8 शोबेजात बनाए गए हैं, 39 अफसरान हैं। हर शोबे के लिए एक DSP लेवल का अफसर मुकर्रर किया गया है जो तमाम तर वाकयात पर, डकैती हो, दहशतगर्दी हो, कत्ल, इक़दामी कत्ल हो, उनके लिए तफ्तीश करेंगे। दानियाल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। अहम खबर है कि हवेली लखा के एक निजी बैंक के गार्ड ने डकैती की वारदात नाकाम बना दी। वाकये की CCTV फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह गार्ड्स ने अपनी जान पर खेलते हुए वारदात नाकाम बनाई। मुजाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग की जिससे 2 गार्ड्स जख्मी हो गए। हवेली लखा के निजी बैंक के गार्ड ने डकैती की यह वारदात नाकाम बना दी और इसकी CCTV फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। सियालकोट के थाना 17 के इलाके धर्मकोट चौक में कार से बाप बेटे समेत 3 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। इन तीनों अफराद को गला दबाकर कत्ल किया गया था। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। मियां अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। मियां अशफाक, पुलिस की तहकीकात क्या कहती हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, ये थाना 17 का इलाका धर्मकोट है जहां पर एक ब्लैक कार से 3 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं और जिनके मुतालिक बताया जा रहा है कि ये कसूर के रिहायशी हैं जो चमड़े की खरीदो फरोख्त के लिए सियालकोट आए थे और रेंट पर बमा ड्राइवर गाड़ी लेकर सियालकोट के लिए आए थे। लेकिन बाद अज़ां जब इनके मोबाइल नंबर बंद हुए तो इनके लवाहिकीन को शक गुजरा। इसके बाद उन्होंने ड्राइवर के नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की तो उसका नंबर भी बंद था। यूं मशकूक हालात के पेश नज़र इन्होंने ट्रैकर के जरिए गाड़ी को ट्रेस किया तो पता चला कि वो धर्मकोट के इलाके में इस वक्त ट्रैवल कर रही है। ट्रैकर को बंद करने के बाद गाड़ी वहीं पर रुक गई। जो मुल्जमान थे उनको वो गाड़ी को उसी तरह छोड़कर वो मौका से फरार हो गया था। हम जब इलाका मकीन वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 2 अफराद पिछली सीट पर जो है वो मुर्दा हालत में पड़े हुए हैं। पुलिस जब पहुंची, मियां अशफाक बहुत शुक्रिया।